الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی ہمارا موضوع چل رہا ہے حدود کے احکام اور مسائل، اور ہم نے پہلے عموماً حدود سے متعلق کچھ احکام اور مسائل پڑھے، اس کے بعد حدود کی اقسام کی طرف ہم نکلے، اور حد زنا اور حد زنا کے بعد ہم نے حد قذف، اور حد قذف کے بعد ہم نے حد سرقہ جو ہے چوری کی حد، اس کا آغاز کیا تھا، اور اس میں کچھ ہمارے پاس احکام اور مسائل باقی تھے۔ تو آج انشاءاللہ ہم چوری کے جو بقیہ مسائل ہیں سرقہ کے، اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حد حرابہ انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس آج مسئلہ ہے وہ چور کا ہاتھ کاٹنے کی شروط کیا ہیں، اس کے بعد اس کا نصاب کیا ہے، اور دیگر جو اس سے متعلقہ تنبیہات اور احکام ہیں انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے۔ تو چور کا ہاتھ کاٹنے کی کچھ شروط ہیں، چونکہ معاملہ حد کا ہے، اور حدود کے اندر کچھ قیود ہوتی ہیں، کچھ شروط ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے حدود کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ اگر ان شروط میں سے کوئی ایک شرط بھی فاقد ہو تو حدود کا یا حد کا نفاذ نہیں ہو پائے گا۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے چوری میں، حد سرقہ میں، وہ یہ کہ چوری کرنے والا مکلف ہو۔ چوری کرنے والا مکلف یعنی عاقل و بالغ ہو، مسلمان ہو یا ذمی ہو۔ مسلمان ہو یا ذمی ہو۔ مسلمان ہو یا ذمی، مکرہ نہ ہو۔ مکرہ کا مطلب مجبور نہ کیا گیا ہو۔ یہ تمام حدود کے اندر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ سوائے قصاص میں، سوائے قصاص میں، قصاص کے اندر مکرہ یا عدم مکرہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کون آپ میں سے بتائے گا کہ قصاص میں مکرہ کا اعتبار کیوں نہیں ہوگا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد، یہ ہو سکتا ہے نا، اگر کوئی کہے گا بھئی آپ نے اس کو نہیں مارا تو میں زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ میں آپ کو مار دوں گا، تو بجائے کسی اور کا گناہ سر پہ ہو، اچھا ہے اپنی جان چلی جائے، ہو سکتا ہے شہید ہو جائے۔ ٹھیک ہے، احسن، تو بالکل ٹھیک ہے، رائٹ۔ چونکہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس کو وہ کہے گا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قتل کے ڈر سے دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کر رہا ہے تو اپنی جان کو اس سے زیادہ قیمتی سمجھ رہا ہے، اپنی جان کو اس سے زیادہ قیمتی سمجھ رہا ہے، اور وہ کہاں جائے گا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو اس صورت میں یہاں مکرہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ البتہ دیگر چیزوں میں چل سکتا ہے، لیکن قتل کسی کو کرنے کی دھمکی کو دے دے کہ آپ فلاں کو قتل کرو، ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، تو یہاں یہ دھمکی نہیں چلے گی۔ اس کو چاہیے کہ وہ کہے ٹھیک ہے قتل کرنا ہے تو کر دو، زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس کی جان چلی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اس کو کہے کہ پوری فیملی کو اڑا دو آپ، ورنہ میں آپ کو اڑا دوں گا، اور اب کیا وہ اپنی جان بچانے کے لیے پوری فیملی کو اڑا دے، پوری فیملی کو قتل کر دے؟ نہیں، قتل بھی نہیں۔ یہ انسان اگر یہ اس کو مجبور نہیں کہیں گے، مکرہ نہیں کہیں گے اس کو۔ جی، مال کسی کی ملکیت میں ہو اور محفوظ مقام سے چرایا گیا۔ مال کسی کی ملکیت میں ہو اور محفوظ مقام سے چرایا گیا۔ ہم نے یہ حد سرقہ کے اندر پڑھا تھا کہ محفوظ مقام سے مال کو اٹھانا اور کسی کی ملکیت میں مال جو ہو اس کو اٹھانا چوری کہلاتا ہے۔ ایک مال جو ایسے ہی پڑا ہوا ہے کہیں، اس کا کوئی مالک ہی نہیں، تو جیسے زمینی خزانے ہوتے ہیں مثلا، تو جاہلیت کے خزانے، دفینے وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ صادر کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، شاید وہ قومیں کب کی مر چکی ہوتی ہیں۔ چوری کیا گیا مال مقررہ نصاب کو پہنچے یا اس سے تجاوز کر جائے، یعنی یا تو مقررہ نصاب تک پہنچ جائے یا اس سے تجاوز کر جائے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر جس کو جواب آتا ہو ہاتھ کھڑا کیا کریں، ہاتھ کا اشارہ کیا کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی موقع ملے۔ اسی طرح جب آپ نے سوال وغیرہ کرنے ہوں تو آپ جو ہے وہ ہینڈ کا اشارہ کیا کریں، میں آپ سے خود جو ہے وہ سلیکٹ کر کے جو سوال وغیرہ پوچھ لیا کروں گا، کیونکہ بعض طلبہ کی طرف سے یہ اعتراض آیا جی ہمیں موقع ہی نہیں ملتا، مطلب کہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں موقع نہیں ملتا۔ تو اس کا یہ حل ہے کہ آپ ہینڈ کا اشارہ کیا کریں اگر کسی کے پاس سوال ہو، تاکہ اس میں سے کسی کو منتخب کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر چوری کیا گیا مال چوری کے نصاب کو نہ پہنچتا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جی، نورین کے علاوہ اور کوئی؟ ہاں، سمیرہ خالد بتائیے۔ سر پھر اس کو تعزیر کے مطابق کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اس پہ حد نہیں نافذ ہوگی۔ احسن تھی،
अहसन थी, माशाल्लाह आप फुकहा बन गए हैं। अब मेरे ख्याल में आपको पढ़ाना चाहिए, मुझे तो अब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सर कभी कभी बात ठीक हो जाती है, अक्सर गलत ही होती है हमारी बात अभी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, 4 सेमेस्टर मुसलसल पढ़ने के बाद इसका इतनी तो अहलियत हो जाती है। चलिए खैर, माशाल्लाह खुशी होती है कि आप लोग माशाल्लाह इज्तिहाद करने लग गए हैं। इसका मतलब ये कि इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद नहीं है, इज्तिहाद का दरवाज़ा क़यामत तक खुला। तो अगर मुकर्ररा निसाब को माल नहीं पहुंचता जो चोरी किया गया है, तो फिर उसको ताज़ीरी सजा दी जाएगी और माल वो वापस किया जाएगा। तो माल वापस रिटर्न करेगा, मालिक तक पहुंचाएगा, और उसको सजा जो है वो ताज़ीरी होगी, लेकिन उसका हाथ नहीं कटेगा। अलबत्ता उसको कोई जेल की सजा हो सकती है, कैदोबंद की, या कुछ कोड़े मारकर, कोई जूते मारकर कुछ छोड़ा जा सकता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर तो ये लग रहा हो कि ये बंदा शरीफ है, मतलब पहली दफा ही चोरी कर रहा है, तो फिर उसके लिए ज्यादा मसलत ये है कि उस बंदे को तंबीह कर दी जाए, ताज़ीर उसको कर दी जाए। मतलब ये है कि हो सकता है बाद लोग, असल में इंसानों की नेचर और तबीयत से पता चल जाता है, उसकी फितरत से। बाद लोग होते हैं, अगर वो पहली दफा कोई जुर्म करते हैं ना, अगर उनको सजा दी जाए तो और ज्यादा मुजरिम बन जाते हैं। तो बाज होते हैं कि अगर वो पहली दफा कोई जुर्म कर बैठे बेचारे, शैतान के गलबे की वजह से, वसवसात गालिब आने की या किसी वजह से, उनको सजा दें तो मतलब वो रुक जाते हैं। तो ये काजी और हाकिम को देखना होगा कि आया ये बंदा पहली दफा चोरी कर रहा है और निसाब को भी माल नहीं पहुंच रहा, अब इसको यहाँ छोड़ने में बेहतरी है या इसको सजा देने में बेहतरी है। अगर तो उसको ये अंदाजा हो कि ये बंदा सजा देने से इसको फायदा होगा, तो उसको सजा देकर छोड़ना चाहिए। और अगर उसको लगे कि अगर इसको सजा दी जाएगी तो ये बंदा और ज्यादा मुजरिम बन जाएगा, तो फिर उसको माफ कर देना चाहिए। माल उससे लेकर मालिक को पहुंचा दें और उसको माफ कर दें। बहरहाल ये काजी का मतलब ये है कि इन चीजों को देखे। जो काजी इतना बेहोश है कि उसको, जो मतलब मुजरिम है, उसकी जो माइंड है, उसकी कैफियत हैं और उनकी जो नफ्सियात हैं, उनका पता नहीं, तो वो काजी कैसा बना बैठा है। तो जज और काजी को चाहिए मुजरिम की नफ्सियात को पढ़े, उसके मुताबिक उनके लिए सजाएं जो हुदूद तक नहीं पहुंचती, ताजीरात जो होती हैं, इंशाल्लाह ये अलग हम मसला पढ़ेंगे ताजीर का, तो उसके अंदर उनकी नफ्सियात के मुताबिक सजाएं दे। ये हद क्या है, इंशाल्लाह ये मसला हम अलग पढ़ेंगे। इसी के साथ आगे मसला आ रहा है कि चोरी की हद क्या है, और इसमें जो इख्तिलाफ अहनाफ के साथ जमहूर का है वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। माल खुफिया तौर पे उठाया गया हो, एलानिया तौर पे नहीं। हमने कहा था कि एलानिया तौर पे अगर उठाया जाएगा तो उसको उचकना कहेंगे, उसको लूटना कहेंगे, उसको डकैती करना कहेंगे, लेकिन वो इस हुक्म में नहीं आएगा। उसके फिर अहकामात अलग हैं, किसी किस्म का शुबा ना हो, अगर शुबा आ गया बीच में तो हाथ नहीं कटेगा। मसलन वालिद ने अपने बेटे का माल चोरी कर लिया, या बेटे ने वालिद का माल चोरी कर लिया। अब ये आपस में रिश्तेदार हैं, और साफ ज़ाहिर है कि अगर बेटा है तो हो सकता है कि बेटे को माल देना वालिद का हक हो, लेकिन वो ना दे रहा हो, इस वजह से चोरी कर रहा हो। या इसी तरह वालिदैन का भी हक है कि वो अपने बेटे के माल में से ले ले। हदीस में एक नबी करीम अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने आकर पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरा वालिद मुझसे मेरा माल मांगता है, यानी मुझसे माल मांगता है कि मैं उसको दूं। तो आपने फरमाया, अंत व मालू का लिअबी का, तू और तेरा मतलब तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है। यानी अगर तेरा वालिद ना होता तो माल कैसे आता, तू कैसे आता, ना तू होता ना माल होता। बहरहाल इसी तरह ज़ौजैन, मियाँ बीवी अगर एक दूसरे की चोरी कर लेते हैं तो हाथ नहीं कटेगा, लेकिन माल वापस किया जाएगा अगर मिल जाता है। लेकिन चूंकि ये शुबा एक है, शुबा ये हो सकता है कि अगर मसलन बीवी अगर अपने शौहर के माल से चोरी कर रही, तो हो सकता है वो कंजूस हो और नानो नफका ना देता हो, कोई भी शुबा बीच में आ सकता है। जैसे हजरत सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु जहलियत के अंदर कंजूस हुआ करते थे, मतलब जहलियत में कंजूस होते थे। तो उनकी बीवी हजरत हिंद ने रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी से मसला पूछ लिया फतह मक्का के मौका पर कि अल्लाह के रसूल, मेरा शौहर जो है वो कंजूस है, तो क्या मैं उनके माल से जरूरत के मुताबिक ले सकती हूँ? तो आपने फरमाया कि अपने बेटे और अपने लिए हम ये मसला पढ़ चुके हैं कि जरूरत के मुताबिक ले सकती है। इसी तरह इस मसले में, शुबे के मसले में कैद साली का मसला भी आता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन ने कैद साली के अय्याम में चोरों के हाथ काटने से मना कर दिया था कि किसी चोर का हाथ ना काटा जाए, क्योंकि कैद साली के अय्याम में लोग मर रहे हैं भूख से। इसी तरह भूख की शिद्दत की वजह से अगर कोई ऐसी फैमिली, ऐसा घर है जो बेचारे मजबूर हो चुके हैं, उनके पास और हीला नहीं रहा, तामुन करने वाले तामुन नहीं कर रहे, मजदूरी नहीं उसको मिल रही, मतलब कि मजबूर हो चुका है इंसान, तो ऐसा शख्स जो इंतहाई भूख की शिद्दत की वजह से अपने जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अगर वो जरूरत के मुताबिक चोरी करता है, तो उसको भी ये शुबा है कि बेचारा जान बचाने के लिए कर रहा है, तो जान बचाने के लिए तो खंजीर खाना जायज है।
تو اگر ایک انسان کسی کا چوری کچھ اٹھا کے جان بچانے کے لیے کھا لیتا ہے تو یہاں ایک شبہ ہے، لہٰذا اس شبے کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. جب قید سالی میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا تو بھوک کی شدت کی وجہ بھی تو قید سالی اس بندے کے لیے اگرچہ ہے، اگرچہ پوری امت کے لیے نہیں لیکن اس بندے کے لیے تو ہے. بہرحال یہ قاضی فیصلہ کرے گا کہ مطلب کس بندے کا ہاتھ کاٹنا ہے اور کس کا نہیں، لیکن یہ قاعدہ اور اصول موجود ہے کہ شبہات کی بنیاد پہ جو ہے وہ حدود کو نافذ نہیں کیا جائے گا. اگر شبہ بیچ میں کوئی آڑے آ جاتا ہے تو حد کو نافذ نہیں کیا جائے گا. چوری ثابت ہو یہ بھی شرط ہے، جیسے ہم نے دیگر جرائم کے اندر یہ کہا، زنا کے اندر، اسی طرح حد قذف کے اندر، تو چوری بھی ثابت ہونی چاہیے. اس کے دو طریقے ہیں، اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو خود چور اقرار کر لے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس دو عادل گواہ اس پر گواہی دے دیں کہ ہم نے اس کو چوری کرتے دیکھا ہے، ہم نے اس کو چوری کرتے دیکھا ہے. لیکن ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اگر چوری ہوا سامان کسی کے پاس مل جائے تو کیا اس کو چور کہیں گے، اس کا ہاتھ کاٹیں گے؟ ہاں بتائیں اسامہ، بتائیں. سر چور کا ہاتھ نہیں کاٹ، کیونکہ چوری کا سامان ملا ہے، لیکن وہ وجہ جس کی وجہ سے ہاتھ کاٹنا جائے چوری، تو اسے کرتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، تو لہٰذا ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا اس معاملے میں. چلیے ایک رائے ہوگی. اور کوئی؟ چلیے جی راشد صاحب آپ بتائیے. جی استاد محترم، ہو سکتا ہے اس نے وہ سامان خریدا ہو، اس نے وہ چوری نہ کیا ہو، چور کوئی اور ہو. چلیے دو رائے ہوگی. ہاں رونق جاوید آپ بتائیے. السلام علیکم. جی استاد محترم، اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے کہ اس نے چوری کی ہے، تو پھر ایسے ہی کیسے دے سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی اور نے اس کے پاس یا اس کے گھر پہ یا اس کے مال کے ساتھ اس کا کوئی سامان رکھ دیا ہو یا غلطی سے رہ گیا ہو. ہاں ٹھیک ہے، احسن تم، آپ سب نے ٹھیک جواب دیا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس سامان مل جاتا ہے جو چوری ہوا تھا تو یہ دلیل نہیں اس بات کی کہ وہ چور ہے. ہو سکتا ہے کسی نے اس کے ساتھ دشمنی میں آ کر اس کے گھر میں رکھ دیا ہو. بس اوقات آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی سامان چوری کر کے جب دیکھتا ہے میں پکڑا جانے لگا ہوں تو اس کے پیچھے رکھ دیتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس کو چوری نہ سمجھ رہا ہو، یا کوئی اور مسئلہ مطلب کہ بیچ میں شبہ آ سکتا ہے، تو اس سے اقرار کروایا جائے گا. یا دو عادل گواہی دے دیں کہ ہم نے یہ سامان جو اس کے پاس ملا ہے ہم نے دیکھا اس کو اٹھاتے ہوئے. دو عادل گواہی دے دیں یا وہ خود اقرار کر لیں. اگر وہ خود اقرار کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے چوری کیا ہے تب بھی چوری ثابت ہو جائے گی. یا پھر دو بندے اس بات کی گواہی دے دے کہ ہاں ہم نے اس کو ان کے گھر سے لے کر نکلتے ہوئے یا اس کے اندر داخل ہوتے ہوئے یا اس طرح کا قرینہ اگر مل جاتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ چوری ثابت ہوگی. وگرنہ خالی سامان ملنے سے چوری جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ سامان کوئی بھی رکھ سکتا ہے. خصوصاً آج کل کے دور میں تو دھوکہ اور فراڈ اور یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہیں. لوگ دشمنی میں آ کے کسی کو پھنسا دیتے ہیں، قتل کا کیس اس پہ ڈال دیتے ہیں، خود قتل کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ملوث خاطر رکھا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو مجرم بنایا جائے گا. چوری ثابت ہونے کی صورت میں کیا احکام ہوں گے؟ چوری ثابت ہونے کی صورت میں کیا احکام لاگو ہوں گے؟ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چور پر دو حق ہوں گے. چوری ثابت ہو جانے کے بعد دو حق اس پر ہیں، ایک حق عام ہے، ایک حق خاص ہے. یعنی خاص حق ہے اور ایک عام ہے. عام کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو سامان چوری کیا ہے وہ صاحب سامان تک پہنچائے، جو اس نے سامان چوری کیا ہے وہ صاحب سامان مالک تک پہنچائے. اور اگر وہ کھا چکا ہے، اس کو مطلب ضائع کر چکا ہے تو اس کا عوض دے گا، اس کا معاوضہ دے گا، اور یہ تا حیات اس کے ذات معلق ہے جیسے قرض ہوتا ہے، تو چاہیے کہ اس تک وہ چیز پہنچائے. تو گناہوں کی تلافی جو ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں وہ آپ جانتے ہیں توبہ سے ہو جاتی ہے. لیکن ایسے گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے ان کی تلافی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک پکی سچی توبہ سے اور دوسرا ان کے حقوق کی ادائیگی سے. تو چوری کسی کا مال کرنا یہ حق ہے اس کا اس پر، جب تک وہ حق اس کو واپس نہیں لوٹا دیتا اس وقت تک خالی توبہ کافی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کا مال لوٹائے، اس تک پہنچائے. لیکن اگر اس کا پتہ نہیں، وہ بندہ مر چکا ہے یا اس کا علم نہیں ہے، یا تو پھر علماء کہتے ہیں اس کی طرف سے صدقہ کر دے. پھر علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اتنا مال اس کی طرف سے صدقہ کر دے. اگر وہ مالک نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے وہ اتنا مال صدقہ کر دے. یا مطلب اس کا اگر کوئی عزیز و اقارب، اولاد، بیٹا، کوئی عزیز و اقارب موجود ہے تو ان کو دے دے. یہ اس وقت ہے کہ جب انسان توبہ طائب ہونا چاہتا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میں جتنے طاقت رکھتا ہوں لوگوں کے حق ان کو واپس کر دوں، تو اس صورت کے اندر یہ طریقہ ہوگا. اگر وہ بندہ بذاتی ہی موجود ہے
बेआईनी ही तो उसको देगा या उसके अहल खाना को देगा, अगर कोई भी उसका नहीं है वारिस तो फिर उसके नाम का सदका कर देगा। ये आम हक है, माल वगैरह लौटाना। दूसरा हक हक खास है, और इससे मुराद अल्लाह का हक है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि हुदूदुल्लाह जो है ये खास अल्लाह का हक है, ये काजी और हाकिम किसी को माफ नहीं कर सकता। अगर मामला अदालत तक पहुंच चुका है तो इस सूरत में उसका हाथ काटा जाएगा, उसका हाथ काटा जाएगा, और ये अल्लाह का हक और ये खास है। नंबर 2, जब हाथ काटना वाजिब हो जाए तो सबसे पहले उसका दायां हाथ काटा जाए। अगर एक दफा चोरी करता है उसका दायां हाथ कटेगा, यहाँ कलाई तक, यहाँ तक उसका हाथ कटेगा। और अगर उसके बाद दोबारा करता है तो फिर उसका बायां पांव काटा जाएगा। लेकिन जब उसका हाथ काटना है या पांव काटना है तो उसको गर्म तेल के अंदर या जदीद आजकल वसाइल हैं उनके अंदर उसको इस तरह जो है वो दागा जाए कि उसका खून बंद हो जाए, उसका खून बंद हो जाए। कदीम जमाने के अंदर तेल गर्म करके उसके अंदर उसको डाल देते थे, फौरन उसको दाग देते थे ताकि खून जारी ना रहे। और आप जानते हैं कि जब हाथ कटता है या कोई चीज तो खून जारी रहने की वजह से बंदा मर भी सकता है, क्योंकि जिस्म के अंदर से सारा खून निकल जाता है। तो उसका तरीका ये होता था कि जब वो चोर का हाथ काटते थे तो उसको फौरन गर्म तेल आयल वगैरह के अंदर उसको डाल देते थे ताकि उसको दाग दिया जाए। तो दागने से वो जो जख्म होता है वो बंद हो जाता है और खून जो है वो निकलना बंद हो जाता है। इससे जो है उसकी जान कम से कम जो है वो महफूज रह जाती है। तो असल मकसूद खून को थामना और रोकना होता है। 2 बार चोरी करेगा यानी दोबारा, तो उसका पांव काटा जाएगा, उसका बायां पांव काटा जाएगा। लेकिन उसके बाद उलमाए किराम फरमाते हैं कि 2 बार के बाद अगर तीसरी बार चोरी करता है तो फिर उसका हाथ पांव कोई नहीं काटा जाएगा। बाज़ उलमा का ये मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि 2 बार उसको सजा दी जाएगी, तीसरी बार उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। अलबत्ता उसको कोई और सजा, ताज़ीरी वगैरह सजा दी जा सकती है, माल उसे वापस लिया जाएगा या उसको कैदोबंद में रखा जाए या कोई और तरीका इख्तियार किया जा सकता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि उसका फिर उसके बाद हाथ नहीं काटा जाएगा, 2 बार यानी 1 बार हाथ फिर उसके बाद, क्योंकि जब उसके दोनों हाथ पांव काट दिए जाएंगे तो इससे वो माजूर हो जाएगा और इससे वो मांगने लग जाएगा लोगों से और कबाहतें उसके अंदर आएंगी। तो इस्लाम जो है वो किसी को इस हद तक नहीं पहुंचाना चाहता कि उसको जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो सिर्फ चोरी की वजह से उसको माजूर कर दिया जाए और किसी वो खाने से भी जो है वो जाए। अलबत्ता हराबा के अंदर जो है जो आगे सजा आ रही है डकैती की और इस तरह जो है वो दहशतगर्दी की और ये सारी जो सजाएं उसके अंदर सख्त सजा है, लेकिन इसके अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो बंदा खाना भी खाने से महरूम हो जाए। जेब कतरे का भी हाथ ही काटा जाएगा, यानी अगर कोई जेब कतरा है, और ये बहुत बड़ा एक फन है, बहुत बड़ा एक फन है। लोग कहना चैलेंज करके कहते हैं कि मैं आपकी जेब से चीज निकालूंगा, आप मुझे पकड़ लेना। वो निकाल लेते हैं, पता ही नहीं चलता। हाथ की सफाई इतनी दिखाते हैं कि बंदे को पता ही नहीं चलता। तो जेब कतरे बड़ी किस्म के हैं, जो नए नए होते हैं, जो एक्सपर्ट नहीं होते पकड़े जाते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट मास्टरमाइंड बन जाते हैं, उस्ताद बन जाते हैं, वो तो बंदे को इतनी हाथ की सफाई दिखाते हैं कि बंदे को पता ही नहीं चलता, जेब खाली हो जाती है। तो ऐसे लोग भी चोरी में ही आते हैं, क्योंकि वो खुफिया तरीके से महफूज मुकाम से माल को चुरा रहा है। जेब आपका महफूज मुकाम है, तो जेब से महफूज मुकाम है और वहां से वो चुरा रहा है, तो इसका मतलब ये भी चोर है, ये भी चोर है। और इसका भी अगर कोई इस्लामी रियासत है वहाँ हदूद का निफाज होता है, तो अगर वो माल जो जेब से उसने चुराया है अगर वो निसाब को पहुंच रहा है तो उसका हाथ काटा जाएगा, बसूरत दीगर उसको ताज़ीरी सजा दी जाएगी। अब यहाँ गाल अगला मसला, चोरी का निसाब या हद सरिका कितना है। इस मसले में फुकहा के 3 अक़वाल हैं। असल में 2 कौल तकरीबन करीब करीब हैं, उसमें सिर्फ ये है कि उसके अंदर फर्क किया गया चांदी और सोने का, वगरना करीब करीब। लेकिन अहनाफ का असल में जमहूर से इख्तिलाफ है। तो इस मसले में 3 कौल हैं, हम पढ़ते हैं हर एक की दलील। पहला कौल ये कि चोरी का निसाब अगर सोना हो तो दिनार का चौथा हिस्सा, और अगर चांदी हो तो 3 दिरहम है। ये पहला कौल है, यानी अगर हम सोने का एतबार करेंगे तो फिर 1 दिनार का चौथाई हिस्सा यानी 1/4, और अगर दिरहम हो तो फिर 3 दिरहम, अगर है 3 दिरहम या इससे ज्यादा तो फिर हाथ कटेगा। ये कौल इमाम मालिक और इमाम अहमद का है। ये कौल इमाम मालिक और इमाम अहमद रहमहुल्लाह ताला का कौल है। इनकी दलील एक तो अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस है, दूसरा हज़रत आयशा की हदीस है। अब्दुल्लाह बिन उमर क्या फरमाते हैं, ये उनका इज्तिहाद है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ता फी मिजन्निन समनुहु सलासतु दराहिम। फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने चोर का हाथ काटा, फी मिजन ढाल को कहते हैं, जो तलवार वगैरह से बचने के लिए ढाल आगे इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं मिजन ढाल को।
کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہاتھ کاٹا فی مجن ایک ڈال میں، یعنی ایک ڈال چوری کرنے کی وجہ سے، ثمنہ جس کی قیمت تھی ثلاثۃ دراہم 3 درہم، ثلاثۃ دراہم جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ چوری کی حد بن سکتی ہے؟ ہاں بتائیے اسامہ۔ تیسرے آگے ہاں السلام علیکم سر، السلام علیکم سر، سر ذرا پلیز کوشچن ریپیٹ کر دیں۔ آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ سر میں ادھر ہی تھا لیکن اچھا میں نے کہا عالم رویہ میں سمجھ نہیں آیا۔ اچھا عالم رویہ میں تو نہیں؟ نہیں سر، عالم رویا میں تو نہیں ہوں الحمدللہ۔ چلیے ٹھیک ہے الحمدللہ، اگر عالم رویہ میں نہیں پہنچے تو ٹھیک ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے چور کا ہاتھ کاٹا ایک ڈال کے بدلے میں جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ اب بتائیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ چور کا ہاتھ کاٹا اللہ کے رسول نے ایک ڈال کے عوض میں، یعنی اس نے چوری کر لی تھی اور اس کی قیمت 3 درہم تھی، اب یہ 3 درہم کا تعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا عبداللہ بن عمر کی طرف سے ہے؟ اس کو توقیفی کہیں گے، اس کو جو ہے وہ سنت کہیں گے، مرفوع کہیں گے؟ سر اس کا اندازہ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا کہ اس کی قیمت 3 درہم تھی۔ ہاں یہ بتائیے نبی کریم میرا خالد آپ بتائیے۔ سر یہ تو صحابی کا اپنا اجتہاد ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم اس حدیث سے نہیں ثابت ہو رہا، یہ وہ اس سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ 3 درہم ہے۔ جی تو گویا کہ انہوں نے اس دور میں جو اس ڈال کی قیمت ہے وہ بتائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا تھا کہ وہ 3 درہم تک پہنچ رہی تھی۔ یہ امام شافعی نے دلیل لی ہے ان کے خلاف، یعنی کہ امام مالک اور امام احمد کے برخلاف انہوں نے کہا کہ یہ دلیل نہیں بنتی۔ دوسری ان کی دلیل حضرت عائشہ کی۔ چلیے خیر ہم آگے چلتے ہیں، مسئلہ مزید واضح ہوگا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، کہ ہاتھ کاٹا جائے گا ربع دینار میں، یعنی 1/4 میں، فصاعدا اور اس سے اوپر تک، یعنی اگر کوئی چوری کرتا ہے دینار کا چوتھا حصہ یا اس سے اوپر تک تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر اس سے کم ہے تو نہیں کاٹا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے قول سے، اپنے فرمان سے، اپنی زبان سے چوری کی حد متعین کر دی ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحت میں اعلیٰ درجے پر ہے، صحت میں صحیح ہونے میں سب سے اعلیٰ درجہ متفق علیہ ہے، کہ اس کو بخاری مسلم دونوں اس کی تخریج کر رہے ہیں، دونوں روایت کر رہے ہیں، اور امت اسلامیہ کے اندر محدثین کے ہاں، علماء کے ہاں سب سے صحیح ترین حدیث جو ہے متفق علیہ ہے۔ اس کے بعد جو صرف صحیح بخاری میں ہو، اس کے بعد جو صرف صحیح مسلم میں ہو، پہلے جو دونوں میں ہو، پھر جو دونوں میں سے کسی ایک میں ہو، تو یہ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث کی کیٹیگری میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور جن سے احناف کرام استدلال کرتے ہیں ان سب حدیث میں روایات میں کلام ہے۔ چلیے خیر، تو یہ انہوں نے کہا کہ 3 درہم کا تعین عبداللہ بن عمر کی حدیث سے ہوتا ہے، اور ربع دینار کا تعین جو ہے 1/4 کا وہ حضرت عائشہ کی حدیث سے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ ہے کہ 1 دینار عصر حاضر میں اس وقت کتنے کا بنتا ہے؟ تو 1 دینار 4.25 گرام کا بنتا ہے، یعنی 1 دینار کے اندر 4 گرام اور 25 پوائنٹ ہوتے ہیں، 25۔ اور اگر اس کا ہم چوتھائی حصہ کریں تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے، 1 گرام سے کچھ اوپر بنتا ہے، 1 گرام سے کچھ اوپر بنتا ہے، یعنی 06 پوائنٹ یعنی یہ بنتا ہے، اور یہ بہت کم ہے، یعنی کچھ 1 گرام سے اوپر، گویا کہ آپ 1 گرام کر لیں، اور 1 گرام کی قیمت ہم متعین نہیں کر سکتے، یعنی ہم اس کو ایک جگہ پہ مست نہیں بتا سکتے کہ اتنی ہے۔ تو اگر مثلا پاکستان میں 1 گرام کی قیمت جو چل رہی ہے، سعودی عرب کے اندر عموماً مطلب کہ جو سونے کی قیمت گرام کے حساب سے چلتی ہے، ہمارے ہاں تولے کے حساب سے چلتا ہے، لیکن سعودی عرب کے اندر گرام کے اعتبار سے عموماً وہ دیتے ہیں۔ تو وہاں تقریباً جہاں تک مجھے اندازہ ہے، چونکہ میں وہاں کافی سال رہا ہوں، مجھے ایک اندازہ ہے کہ وہاں
सोने की कीमत तकरीबन 150, 140, 50, 60, 70 तक, मतलब ये उसका सोने का रहा है तकरीबन। काफी सालों से जो मैं नोट करता रहा हूँ वो ये है कि 140 से 170 के दरमियान तक, मतलब कि जो सोना 24 वो उसका होता है, एक पॉइंट होता है, तो वो तकरीबन 140 से ऊपर ऊपर और 70 से नीचे नीचे तकरीबन इसके दरमियान दरमियान होता है रियाल। तो आप उसकी कीमत बना लें पाकिस्तानी कितने बनते हैं। 150 अगर आप रियाल कर लें तो 150 को आप कर लें जितने पाकिस्तानी बन रहे हैं, तो इस तरह जो है वो अगर आप रियाल के हिसाब से, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में हम सोने की कीमत यहाँ की लगाएंगे। मैं वैसे आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ कि सऊदी अरब के एतबार से कितनी बनती है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मुझे इस वक्त कंफर्म नहीं कि मतलब कि ग्राम किस तरह है, क्योंकि हमारे यहाँ उमूमन तोलों के हिसाब से लोग लेते हैं, तो ग्राम पूछना पड़ेगा कि कितने का बनता है। वहां चूंकि ग्राम के एतबार से तोले शोले नहीं चलते, तो इस वजह से तो मुझे ज्यादा इसका अंदाजा है। किरात नहीं है, किरात नहीं है, ग्राम की बात कर रहा हूँ, ग्राम। किरात में इख्तिलाफ है, किरात में इख्तिलाफ है, बाज कहते हैं रुबो दिनार बनता है, बाज कहते हैं मुख्तलिफ, उसमें अकवाल मौजूद है, ये हमने शायद पढ़ा था, हमने जिक्र मैंने किया था। बहरहाल यहाँ ग्राम की बात हो रही है। तो अगर 1 ग्राम तक जो है वो चोर का चोरी किया हुआ माल पहुंचता हो तो उसका हाथ काटा जाएगा या इससे ऊपर, और अगर इससे कम हो तो फिर उसका हाथ जो है वो नहीं काटा जाएगा, उसको ताज़ीरी सजा दी जाएगी। दूसरा कौल ये है कि चोरी का निसाब 1/4 दिनार है, यानी दिनार का 1/4 हिस्सा, लिहाजा इसी इतबार से कीमत बनाई जाएगी, चांदी या दीगर चीजों को नहीं देखा जाएगा। ये इमाम शाफी का कौल है। इनकी दलील एक तो हजरत आयशा की हदीस है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की, हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने जुबान से तयन किया है चोरी की हद का, और इनके नजदीक असल यही है, लिहाजा किसी दूसरी चीज की कीमत नहीं बनाई जाएगी। हम दिरम को नहीं देखेंगे, हम किसी और चीज को नहीं देखेंगे, हम सोने के मुताबिक जैसे ज़कात की कीमत बनाई जाती है ऐसे हम इसकी कीमत बनाएंगे। अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस का उन्होंने जवाब वही दिया जो पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि ये उनका जाती अंदाजा है कि उस वक्त 1 डाल की कीमत 3 दिरम थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने चोर का हाथ तो इस वजह से काटा है कि वो 1 दिनार के 1/4 हिस्से से तजावुज कर चुकी थी, वरना उसके अंदर ये तयन नहीं है कि उस वक्त अल्लाह के नबी ने 3 दिनार को देखा है, बल्कि आपने 3 दिरम को देखा, आपने तो दिनार का 1/4 हिस्से के एतबार से निसाब को देखा है। तीसरा कौल अहनाफ का है, वो कहते हैं कि चोरी का निसाब 10 दिरम है, 10 दिरम है, और इसी वजह से इनके यहाँ कम से कम हक महर की मिकदार भी 10 दिरम है, जैसे हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने गोया के क्यास किया है, और क्यास कैसे किया है, इन्होंने गोया के जो है वो औरत की शर्मगाह को चोर के उज़व के साथ तशबीह दी है, इन्होंने तशबीह दी है, और ये क्यास है। गोया कहते हैं जैसे यहाँ चोर का हाथ काटा जाता है, उज़व उसका काटा जाता है, और उसका निसाब 10 दिरम है, ऐसे वो भी एक उज़व है, लिहाजा उसको उस पर क्यास करते हुए कहते हैं जी उसका भी 10 दिरम कम से कम हक महर होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में जितनी रिवायात वारिद हुई हैं वो सारी की सारी ज़ईफ है, और यह हनाफ का कौल। इनकी दलील इस तरह की सारी रिवायात हैं, तकरीबन अमर बिन शुएब अन अबी अन जद्दी वाली सनद के साथ बहुत सारी रिवायात वारिद हुई हैं। तो इससे पहले जो रावी हैं उनके अंदर कलाम है। अमर बिन शुएब अन अबी अन जद्दी वाली रिवायत तो हसन दर्जे की है, लेकिन इससे पहले जो रावी हैं उनमें कलाम है। तो अन अमर इब्न शुआइब अन अबी अन जद्दी, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया ला क़त्अ फीमा दूना अशरती दराहिम, कि 10 दराहिम से कम में हाथ नहीं काटा जाएगा। ये हदीस मुस्नद अहमद में है, लेकिन हदीस ज़ईफ है, और इसके ज़ईफ होने की वजह इसमें रावी है हज्जाज इब्न अरता। हज्जाज इब्न अरता रावी जो है इसमें ज़ाफ भी है, उलमा ने इसको, बहुत सारे उलमा ने ज़ईफ भी कहा है, और ज़ईफ होने के साथ साथ तदलीस भी कर रहा है, मुदल्लिस है ये। तो मुदल्लिस रावी जब तदलीस कर रहा हो तो उसकी रिवायत मुदल्लस होती है, यानी अना के साथ जब बयान कर रहा हो, अन के साथ, हद्दसना के साथ बयान ना कर रहा हो बल्कि अन के साथ बयान कर रहा हो या अन्ना के साथ बयान कर रहा हो, उस वक्त उसकी रिवायत मुदल्लस होती है, मुदल्लिस की रिवायत मुदल्लस होती है। तो ये कायदा है। हज्जाज बिन अरता जो है, हाफिज इब्न हजर कहते हैं ये सदूक है लेकिन मुदल्लिस है। तो अगर इसको सदूक भी मान लें तो तदलीस से पता चल रहा है कि इसने तदलीस की है और अन के साथ रिवायत कर रहा है। इसी तरह दीगर रिवायात जिनके अंदर 10 दिरहम का जिक्र आता है वो सारी ही कलाम से खाली नहीं। तो यहाँ इंसाफ देखे जरा हनाफ का कि एक तरफ मुत्तफकुन अलैह हदीस हैं, उनको नजरअंदाज करके जो ज़ईफ हदीस है उनका सहारा ले रहे हैं, और इसकी कोई तईद भी कुरान करीम की आयत से नहीं हो रही। तो ये कैसा इंसाफ है। तो बहरहाल
जितनी भी रिवायात वारिद हुई हैं जिनके अंदर 10 दिरहम का जिक्र है चोरी के निसाब का, वो सारी उनमें कलाम है, जबकि रुबो दिनार वाली, चौथाई दिनार वाली जो रिवायात है वो बुखारी मुस्लिम की और मुत्तफक़ अलैह हदीस है, और उम्मत का उसको उस कबूलियत पर उसके और फुक़हाए सलासा का वो मतलब उनकी अक़वाल से तईद भी हो रही है। तो राजे मौक़िफ़ यहाँ इमाम शाफी का है, राजे मौक़िफ़ इमाम शाफी का है, चूँकि इमाम शाफी की दलील कवी है, और वो ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब जुबान से बोल कर निसाब बता दिया है तो किसी सहाबी के कौल को उसके मुकाबले में ला के करना ये दुरुस्त नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने ये कहा भी नहीं कि निसाब है, उन्होंने तो ये कहा कि जिस डाल के बदले में चोर का हाथ काटा गया था उस डाल की कीमत तकरीबन 3 दिनार बनती, 3 दिरहम बनती है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जी सर, ये दिरहम उस वक्त कितने का था, कोई अंदाजा है? अल्लाह आलम, इस वक्त मुझे उसका इस्तेहबार नहीं है, लेकिन ये है कि असल में ये चीज़ें जो हुदूद होती हैं ये तौक़ीफ़ी होती हैं नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से या अल्लाह ताला की तरफ से। इस वजह से हम इसकी कीमत दूसरी चीज़ में नहीं बना सकते, क्योंकि फ़र्क हो सकता है। बसा औक़ात हो सकता है कि इस वक्त 3 दिरहम और 1/4 जो दिनार का हिस्सा है वो बराबर ना हो, उनमें फ़र्क हो, तो इस सूरत में तो फिर हुक्म सेम नहीं होगा। लेकिन उस दौर में जब अब्दुल्ला बिन उमर बता रहे हैं उस वक्त हो सकता है कि रुबो दिनार के मुताबिक हो, यानी जब अब्दुल्ला बिन उमर ने जिस वक्त ये वाक़या देखा या चोर का हाथ काटते हुए देखा है उस वक्त हो सकता है कि उस वक्त इनकी कीमत सेम हो, यानी रुबो दिनार की और 3 दिरहम की। लेकिन जरूरी नहीं कि इस वक्त भी तीनों मतलब कीमत इनकी बराबर हो। कुछ तंबीहात हैं इस हवाले से। सबसे पहले, अगर चोर चोरी का एतराफ़ करके लेकिन उसके पास सामान ना मिले, यानी चोर चोरी का एतराफ़ कर ले लेकिन उसके पास अगर सामान ना मिले, तो काजी को चाहिए कि इससे दोबारा एतराफ़ करवाए। हो सकता है कि उसे कोई शुबा लायक हो रहा हो, या जिसे वो चोरी समझ रहा हो वो चोरी ना हो, तो इसके अंदर तहकीक करनी चाहिए। जैसे हमने ज़ना के अंदर कहा था कि अगर कोई शुबा हो तो 1 से ज़ायद बार भी एतराफ़ करवाया जा सकता है। इसी तरह अगर चोर एतराफ़ करने के बाद रुजू कर ले, वो कहे कि मैंने चोरी नहीं की, पहले एतराफ़ कर ले बाद में कि मैं तो झूठ बोल रहा था, तो इस सूरत में उस पर हद नहीं लगाई जाएगी। चोरी का एतराफ़ करने के बाद अगर दोबारा वो इनकार कर देता है कि मैंने चोरी नहीं की, तो अगर उस पर गवाह कायम हो जाते हैं, आदिल गवाह गवाही देने वाले, तो उसका हाथ काटा जाएगा, वगरना उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। खाली एतराफ़ करके अगर वो रुजू कर लेता है तो इस सूरत में उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। इसी तरह अगर ज़ना का एतराफ़ करने के बाद भी वो रुजू कर लेता है तब भी उसको उस पर हद ज़ना नहीं लगेगी। हत्ता के बाद उलमा ने कहा अगर हद लगने के दौरान भी वो इतराफ़ कर लेता है, रुजू कर लेता है, कहता है कि मैंने ज़ना नहीं किया, तो उसको छोड़ दिया जाएगा, इल्ला के गवाह मिल जाएं। इसी तरह अगर चोर इतराफ़ करने के बाद रुजू कर ले तो उसका जो है वो चोरी का इनकार कर दे, तो राजे कौल के मुताबिक उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, जैसे मैंने जिक्र किया। जो शख्स बैतुल माल से चोरी कर ले तो ऐसे शख्स को ताज़ीरी सज़ा तो दी जाएगी और माल वापस बैतुल माल में लौटाया जाएगा, लेकिन उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि बैतुल माल में उसका भी हिस्सा है, क्योंकि बैतुल माल में हर मुसलमान का हिस्सा है। तो जब हर मुसलमान का हिस्सा है तो इस सूरत में चूंकि शुबा है और इस शुबे की वजह से उसका हाथ नहीं काटा जाएगा बैतुल माल से, माल चोरी करने की वजह से। अलबत्ता वो माल लौटा दिया जाएगा बैतुल माल के अंदर और उसको ताज़ीरी सज़ा दी जाएगी, लेकिन उस पर हद नहीं लगाई जाएगी। चलिए जी, आगे हमारे पास जो मसला है हद हिराबा का है। हद हिराबा, पहले तो हिराबा को समझना होगा। हिराबा असल में ये कुरान करीम की आयत के अंदर इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से वहां से अखज़ किया गया इसको। तो इससे मुराद असले के जोर पर रास्ते, बैंक, गाड़ियों के मुसाफिर, बसों के मुसाफिरों को लूटना, घरों को लूटना, घरों में रहने वालों को लूटना, ये सारा हिराबा है। ये सारी हिराबे की किस्में, और इसे शरीयत एतबार से मतलब कि इसको डकैती और ये सारी चीजों को हिराबा कहा जाता है, यानी शरीयत में इसे हिराबा कहा जाता है। उर्दू में हमारे यहाँ इसको डकैती बोलते हैं। रास्ते लूटना, बैंक लूटना, ये सारी डकैती में आता है। बच्चियों को अगवा करना भी इसी में आता है। बच्चों और बच्चियों को अगवा करना भी इसी में आता है। ब्लैकमेल करना भी इसी में आता है। लोगों के अंदर खौफ और हरास फैलाना, धमाके करना, ये सारी भी हिराबा की अकसाम है। ये सब इसी में आएंगी। इस वजह से इनकी सजा सख्त है। चूंकि हिराबा बहुत बड़ा जुर्म है, इस वजह से इसकी सजा भी शरई सजाओं में सबसे ज्यादा सख्त है। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह माइदा में फरमाता है, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसऊना फिल अर्दि फसादा अन युक़त्तलू
औ युसल्लबु औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ औ युनफू मिनल अर्द ज़ालिका लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। यहाँ इस आयत में सूरह माइदा में जो अल्लाह ताला उसके रसूल के साथ जंग करते हैं, ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी सज़ा को बयान किया। तो रास्तों को लूटना, ज़मीन में फसाद बर्पा करना, लोगों में खौफ और हरास पैदा कर देना, लोगों को डराना, ये फसाद है। और ये दर हकीकत अल्लाह के रसूल से जंग है। अल्लाह के रसूल से जंग कैसे है? क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अमन को कायम करने के लिए आए। इस्लाम दिया गया है अमन के लिए, लेकिन वो उस मुसलमान का क्या फायदा जो लोगों को डरा रहा है और उस रियासत के अंदर, इस्लामी रियासत के अंदर लोगों को रास्ते महफूज नहीं। ये अमन को चैलेंज है, ये उस मुल्क के, उस रियासत के अमन को चैलेंज है। इस वजह से इसे अल्लाह के रसूल से मुहारबा कहा गया है, अल्लाह के रसूल से जंग करने वाले ही ने कहा गया, क्योंकि ये अमन को खराब करते हैं। तो फरमाया अन युक़त्तलू, उन्हें बुरी तरह कत्ल किया जाए, ये शद के साथ है, तशदीद के साथ। औ युसल्लबू, सूली दिए जाएं, या उनके मुखालिफ सिमत से हाथ पांव काट दिए जाएं, या जला वतन कर दिया जाए। आपने मेरे ख्याल में सूरह माइदा का तर्जुमा पढ़ लिया होगा, ऐसे ही है? जी सर। जी सर। चलिए माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। सवाल ये है, कौन आप में से बताएगा कि इस आयत में एक ही कैटेगरी के लोगों के लिए 3-4 सजाएं बयान की गई हैं, तो किस पर अमल होगा और कैसे होगा, इसकी तत्बीक क्या है? हाथ जरा उठाइएगा। चलिए जी, एक और बंदा बीच में जलवागर हो गया है। हाला, आप बताइए। सर, इसमें ये बात है कि जो है ना, अगर आपने देखना है सजा उसके मुताबिक देनी है जो जुर्म किया गया है। तो उसमें ये होगा कि जैसे अगर इन्होंने डकैती वगैरह की है, उसके लिहाज से जुर्म वो सजा दी जाएगी, क्योंकि जो हदीस थी ना जिसके बारे में हमने इसमें पढ़ा था कि वो जो गिरोह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और उसने चरवाहे को मार दिया और सब कुछ लूट के चला गया, तो उस पे अल्लाह के रसूल ने ये इस तरह की हद जारी की थी। लेकिन वो 2-3 गुनाह उन्होंने इकट्ठे किए थे, एक तो मुर्तद भी हो गए थे, साथ चोरी भी की थी, नहीं, साथ अब कत्ल भी सवाल किया ये था, है, तो उसके लिहाज से। हाँ बताइए हाला, अब बता। सवाल ये है मेरा, इनमें से कौन सी सजा काजी और हाकिम मुंतखब करेगा? क्या सारी एक ही बार दे दी जाएंगी या एक ही सिर्फ दे सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो बताइए, मैं सवाल कर रहा हूँ, उस सवाल के मुताबिक जवाब दें। सवाल ये है कि इस आयत में जो सजाएं 4 बयान की गई हैं, क्या चारों ही दी जाएंगी या इनमें से 2 दी जाएंगी, 1 दी जाएगी, और उसका तरीकाकार क्या होगा? कैसे मतलब इस आयत को हम अप्लाई करेंगे? सर, वैसे इसका मुझे आयत के मफ़हूम से लग रहा है कि जैसे अल्लाह ने बयान किया है कि औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम, तो इसमें सारी तो नहीं दी जाएंगी, लेकिन शायद देखा जाएगा कि जुर्म कितना बड़ा था, उसके लिहाज से फिर दी जाएंगी। और कोई और वाजे करे इसको। और मैंने ये क्लास में इशारा भी किया था, पीछे माजी में मैंने इसमें इशारा किया था इस बात की तरफ। जी राशिद, आप बताइए। मतलब सजा तो एक ही होगी क्योंकि औ का लफ्ज है। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक से ज्यादा सजाएं इन लोगों को नहीं दी जा सकती? अगर औ को देखें तो फिर हम यहाँ पे यही कहेंगे कि कत्ल किए जाएंगे, या आगे मतलब या का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ना, तो फिर हम यही कहेंगे कि एक सजा दी जा सकती है। ठीक है, आपकी बात खत्म होगी, दूसरों को मौका दें। आप कहना चाह रहे हैं कि एक से ज्यादा सजाएं एक वक्त में नहीं दी जा सकती, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल, एक ही देंगे जो भी। जी बताइए नूरीन, आप बताइए। उस्ताद, मेरे ख्याल में ये देखा जाएगा कि उन्होंने जो काम किया है उसमें से कौन सी सजा एक दफा दी जाएगी, अगर उन्होंने दोबारा किया तो फिर जो दूसरी सख्त सजा है वो दी जाएगी। अच्छा चलिए, यानी आप कह रहे हैं कि उनकी तादाद को देखा जाएगा, अगर उन्होंने एक बार किया तो फिर दूसरी बार किया तो फिर, और शिद्दत को भी, जुर्म की शिद्दत को भी, कि सिर्फ जो है ना मारधाड़ किए या कुछ और भी किए साथ में, शायद उसको देख के। ठीक है, अहसनती। किसी और की भी और के ज़हन में कोई इसके अलावा और कोई सूरत हो? सर इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि मर्द ने ये काम किया या औरत ने ये काम किया। चलिए, एक ये हो गया कॉल। जी राशिद, आपके ज़हन में कोई चीज आप बताना चाह रहे हैं? जी ये पहले वाला रेस हैंड, ये मैं एक्सप्लोर कर देता। चलिए रिज्यूम कर लें, ये कॉल कदीम है, इसका मतलब है। जी सर, मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ फरमाइए।
जी सर, मैं ये कह रही थी कि ये भी तो हो सकता है ना कि हद हराबा के अंदर मतलब एक से ज्यादा जुर्म किए जाएं। जैसे अगर बंदा कोई लूट रहा है किसी जगह को, तो वो उस जगह के लोगों को भी मार दे, तो उसके लिहाज से फिर एक से ज्यादा सजा दी जाए। ये भी तो हो सकती है एक चीज। चलिए ठीक है, अहसन थी, राइट। तो आप जानते हैं कि जो हिराबा यानी जो ऐसे लोग होते हैं डकैती करने वाले, वो बसा औकात एक ही हमले के अंदर 3-3 4-4 जुर्म कर लेते हैं। तो उनके जराइम को मद्देनजर रखते हुए बसा औकात लूटते भी हैं, कत्ल भी कर देते हैं, बसा औकात सिर्फ लूटते हैं, बसा औकात सिर्फ कत्ल करते हैं, बसा औकात सिर्फ डराते हैं। तो ये जो उनकी हालात हैं, यानी हम इस तरह करके सूरतें बनाएंगे, लूटते भी हैं, कत्ल भी करते हैं, ये पहली सूरत। नंबर 2, सिर्फ कत्ल करते हैं। नंबर 3, सिर्फ लूटते हैं। नंबर 4, सिर्फ डराते हैं। तो मुख्तलिफ सूरतें हैं। इन सूरतों की वजह से मुख्तलिफ इसके अहकामात होंगे। लिहाजा अगर तो लूटा भी है, कत्ल भी किया है, तो उनको कत्ल करने के बाद बुरी तरह सूली पे लटकाया जाएगा, इबरत बनाने के लिए। और अगर जो है उन्होंने सिर्फ कत्ल किया है तो फिर उन्हें कत्ल किया जाएगा। और अगर उन्होंने माल लूटा है, कत्ल नहीं किया, तो उनके हाथ मुखालिफ सिमत से काट दिए जाएंगे, हाथ पांव। और अगर उन्होंने लूटा भी नहीं, कत्ल भी नहीं किया, लेकिन डराया है, खौफ हरास पैदा किए, डरा रहे हैं, इस सूरत में उनको जिला वतन कर दिया जाएगा। इस सूरत में उनको या कैदो बंद में रखा जाएगा या जिला वतन कर दिया जाएगा। खुलासा कलाम ये है कि काजी और हाकिम उनके जुर्म की नोयत को देखकर इन सजाओं में से दो या एक से जायद भी मुंतखब कर सकता है। जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके साथ सारे काम किए, उनके आपने हाथ पांव भी काटे, उनको जो है वो बुरी तरह कत्ल भी किया, उनकी आंखों में सुलाखें भी मारी, उनका मुसला भी किया, और उनको हर्रा के अंदर पथरीली जमीन पे तड़पते हुए छोड़ दिया। क्योंकि उनके जराइम बहुत ज्यादा थे। एक तो मुर्तद हुए थे, दूसरा उन्होंने मुसला किया था नबी अलैहिस्सलाम के चवाहों का, और तीसरा उन्होंने कत्ल किया था, चौथा उन्होंने कई उनके जराइम थे। तो इस वजह से उनके साथ ये सब कुछ जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने किया था। तो बहरहाल ये जुर्म की नोयत के एतबार से इसकी मुख्तलिफ जो है वो सूरतें उलमा ने बनाई हैं। नंबर 1, जब वो माल लूटने के साथ साथ कत्ल भी कर दें तो उन्हें कत्ल करके सूली पे लटका दिया जाएगा। अगर सिर्फ कत्ल करें लेकिन माल ना लूटें तो सिर्फ कत्ल किए जाएंगे, सूली पे नहीं लटकाया जाएगा। और अगर सिर्फ माल लूटें, कत्ल ना करें, तो इनमें से हर एक का दायां हाथ और बायां पांव काटा जाएगा। हर एक का दायां हाथ और बायां पांव काटा जाएगा। अगर माल भी ना लूटें, कत्ल भी ना करें, लेकिन डराते धमकाते हों, तो इन्हें जिला वतन कर दिया जाएगा, या उसके कायम मुकाम जेल के अंदर भी रख दिया जा सकता है, कैदो बंद में भी रखा जा सकता है, बशर्ते कि निकल ना सकते हो। हाकिम और काजी के पास इख्तियार है, ये पांचवा जवाब है, वो ये है कि हाकिम और काजी के पास इख्तियार है कि वो इनकी शर के खात्मे के लिए इनमें से कोई भी सजा मुंतखब कर सकता है। मकसूद शर का खात्मा है, वो जिस तरीके से भी हो जाए, एक सजा देने से हो, 2 से हो, 3 से हो, जिस तरह भी हो, असल में मकसूद शर का खात्मा है, वो कर सकता है। तो ये उलमा ने इस आयत को मतलब के जमा करने की, इसकी सूरतें बनाने की कोशिश की है जो आपके सामने जिक्र की गई है। क्योंकि ये तकरीबन ये हालात ही होते हैं, जो डकैती करने वाले होते हैं उनके अंदर यही हालात होते हैं। कुछ तंबीहात हैं, जिला वतन करने की बजाय मुजरम को जेल में भी बंद किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके भागने का इम्कान ना हो। जो लोग पकड़े जाने से पहले तौबा कर लें, उन पर हद हिराबा नहीं लगाई जाएगी, लेकिन उनसे माली हुकूक का मुतालबा किया जाएगा, इल्ला ये कि साहिब माल खुद मुआफ कर दे। अगर साहिब माल खुद मुआफ कर दे तो ठीक है, वगरना उन्हें पाबंद किया जाएगा कि जो उन्होंने लोगों के माल लूटे हैं वो उनको वापस करें। और उनके ऊपर जो हद हिराबा है ये नहीं लगेगी, क्योंकि वो उनको जो है वो पकड़ने से पहले वो तौबा कर चुके हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसी आयत के साथ जिक्र किया है कि अगर वो तुम्हारे कब्जा करने यानी पकड़ने से पहले वो तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला मुआफ करने वाला और गफूर और रहीम है। तो ये आज का हमारा जो मौजू था, और दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो कुछ का ताल्लुक जो है हमारे पहले मौजू से ही था, हद सरिका से और हद हिराबा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी फरमाइए। सर, एक रिवायत में ये जिक्र है कि रस्सी चुराने पर भी हाथ काटा जाएगा, ये गलबन बुखारी मुस्लिम में ये रिवायत है। ये मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले भी, और मैंने असल में तंबीह में ये जिक्र करना था, लेकिन अच्छा हुआ आपने याद करवा दिया। मुझे आखिरी वक्त में भी ये हदीस याद थी, बतौर तंबीह के मैंने इसको जिक्र करना था।
اور وہ یہ تھا کہ جس حدیث کے اندر بیضہ کا ذکر ہے، رسی کا ذکر ہے، نبی السلام نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ، کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے چور پر، جو انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، رسی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ۔ بعض محدثین نے اس میں تکلف کرنے کی کوشش کی ہے، اور تکلف کیسے کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ انڈا مراد جو ہے وہ لوہے کا انڈا ہے، یا وہ مطلب پیتل کا انڈا ہے، یا وہ انڈا تھا اس دور کے اندر جس کی قیمت اتنی ہوتی تھی، اور رسی سے مراد جو کشتیاں چلانے والی رسیاں ہیں۔ مطلب اس کا تکلف کرنے کی کوشش کی، اس وجہ سے کیونکہ اس حدیث کے ساتھ متعارض ہے جس کے اندر باقاعدہ نصاب بتایا گیا، جبکہ انڈے کی قیمت اتنی ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں تکلف کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تکلف کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز بتایا ہے اور انجام بتایا ہے، کہ آغاز ہوتا ہے انڈے سے۔ لعنت ہو اس چور پر جو انڈا چوری کرتا ہے، چوری کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ رسی چوری کرتا ہے، چوری کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی انٹرنیشنل چور بنتا ہے نا تو وہ انڈے سے بنتا ہے، جوتے سے بنتا ہے۔ انڈا چوری کر کے لے جاتا ہے، ماں کہتی لا بیٹا جلدی جلدی ہم فرائی کر کے کھا لیتے ہیں، وہ آ نہ جائیں۔ اور جوتا چوری کر کے لے جاتا ہے، ماں آگے سے دفاع کرتی ہے کہ یہ میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، ماں کہتی ہے ابھی ہم نے اس کو نیا لے کے دیا ہے، آپ کے بچے کا تو نہیں، یہ ہمارے بچے کا ہی ہے۔ تو بچے کو حوصلہ ہوتا ہے کہ میری ماں جب میرا دفاع کر رہی ہے، ماں باپ میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، میری سپورٹ کر رہے ہیں، اور میں انڈا چوری کر کے لے کے گیا ہوں، مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ تو اب پھر وہ انڈے سے آگے مرغی تک جاتا ہے، میں نے یہ بات کی تھی، مرغی تک جاتا ہے۔ مرغی پہ جب گھر والے اس کو حوصلہ دیتے ہیں تو پھر بکری تک جاتا ہے، بکری پہ جب حوصلہ ملتا ہے تو بھینسوں گائیوں تک جاتا ہے، جب بھینسوں گائیوں تک حوصلہ ملتا ہے تو پھر وہ بینک لوٹنے لگ جاتا ہے، راستے لوٹنے لگ جاتا ہے، اور وہ انٹرنیشنل ڈکیت اور چور بن جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بتانا مقصود تھا کہ لعنت ہے اس بندے پر کہ جو انڈا چوری کرتا ہے اور چوری پہ لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے چوری کرتے کرتے، یعنی نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ اور رسی چوری کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اہل مدینہ سے مخاطب ہیں۔ اب رسی کا معنی کرنا کہ یہاں کشتی کی رسی مراد ہے، تو آپ مدینہ میں بیٹھ کے مخاطب ہو رہے ہیں صحابہ سے، آپ کہیں سمندر کے کنارے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ مقصود جو ہے وہ دریا کی یا وہ کشتی کی رسی مراد لے رہے ہیں جو مہنگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی مدینہ میں صحابہ سے مخاطب ہیں، اور مدینہ میں کہاں کشتیوں کی رسیاں آئیں؟ اس کا مطلب عام رسی جس سے لکڑی وغیرہ باندھی جاتی وہی اللہ کے نبی کی مقصود اور مراد تھی۔ لیکن آپ کا مقصد یہ بتانے کا تھا کہ انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ رسی سے آغاز کرتا ہے اور چوری کرتے کرتے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ جی سر جزاک اللہ۔ تو اس روایت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے یا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا؟ نہیں، منسوخ تو تب ہم کہیں گے جب تعارض ہو رہا ہو آپس میں، جب کوئی تعارض ہی نہیں تو منسوخ کہنے کی بات ہی نہیں، بلکہ یہ تو فائدہ اس حدیث کے اندر ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ جس کو چھوٹی چوریوں کی عادت پڑ جائے وہ اس حد تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر کوئی انڈا چوری کرتا ہے تو اس کو روکنا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ خاموش ہو جائیں تو اس سے بڑی چوری کرے گا۔ کئی فائدے اس حدیث سے اخذ ہوتے ہیں، ہم اس کو منسوخ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اس کا ٹکراؤ نہیں اس حدیث کے ساتھ۔ ٹکراؤ ہو تو تب ہم کہیں گے چلیے جی اب اس کی توجیہ کریں گے، منسوخ اس کو مانیں گے، یا اس کی کوئی تعویل کریں گے، یا یہ کریں گے۔ یہ معنی واضح ہے، اللہ کے نبی اہل لغت سے مخاطب ہیں، اور آپ کی مقصود اصل میں مراد یہ تھی کہ لعنت ہو چور پر کہ جو انڈے سے آغاز کرتا ہے اور حتیٰ کہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ جی سر جزاک اللہ۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔